Dear students, today we will discuss the chapter statistics. Statistics, a study of data, and you have learnt about the mean, median, mode. This mean, median and mode, these are called the measures of central tendency. Measures of central tendency means mean, median and mode. इन तीनों की जो टेंडेंसी है, जो आदत है, जो स्वभाव है, वो क्या है? बीच में रहने का है, सेंट्रल। सपोज ये है, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे the distribution of heights of 50 students measured to the nearest centimeter was as under. ये हाइट दे रखी है स्टूडेंट्स की सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं. कैलकुलेट द मीन हाइट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट टू 1 decimal place, 1 place of decimal. दिस क्वेश्चन इज देयर. तो जो हाइट है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन and we denote that observation by xi. I means this x1, this is x1. First observation is called x1, second observation is called x2, x3, x4, x5, x6 like this. ये ऑब्जर्वेशंस हैं और ये है इनकी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाई fi. फ्रीक्वेंसी मीन्स ये जो 110 सेंटीमीटर है वो 6 बच्चों की हाइट है. तो 110, 110, 110 6 बार रिपीट हुआ है, 6 बार आया है. तो जो बार बार आता है ना, ये क्या है इसके फ्रीक्वेंसी. दिस इज ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज इट्स फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सआई एंड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफआई. तो 110 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 110 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 6 एंड the height is 115. तो number of students 8 students ऐसे हैं जिनकी height 115 सेंटीमीटर है. 118 सेंटीमीटर 14 students are there. This is height, these are number of students, height, number of students like this. So these are the observations and these are frequencies. तो what we do, xi into fi we find. xi into fi, एक्स आई एंड एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि ध्यान दें, जिस ऑब्जर्वेशन लेनी है उसी की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. ये नहीं कभी इसकी ले लो फ्रीक्वेंसी. 110 and 6 we multiply, what we get? This 660. and this 115 and 8 is multiplied, we get this 920. 118 and 14 multiply, we get this 1652. and this we multiply, we get this. In this way we multiply these and we find the product of xi and fi. We get the product of xi and fi. इस तरह से ये प्रोडक्ट निकाल लिया. अब इस प्रोडक्ट का सम निकालना है. तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ xi fi या fi xi, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ xi fi, and we get this sum as 5891. and this is frequency fi. frequency it is number of students 6, 8, 14, 15, 4, 3 and this is 50. sum of fi, sum of frequency is 50. this is Simonson. इसका मतलब होता है सम ऑफ fi का सम. ये fi है, इनका सम हो गया 50. तो मीन इज रिप्रेजेंटेड बाई x बार. ये जो मीन है
मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। एंड दिस इज सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। ये साइमेंसन सम है एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई का क्या सम आया था? एंड एफ आई का सम डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, एंड दैट इज 50, एंड वी गेट दिस मीन। क्या मिल गया? ये मीन। एंड मीन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स बार 117.8 mean it is, and this method is called direct method. This is called direct method. So direct method is mean is equal to sum of fi xi and divided by sum of fi. ध्यान दें, ठीक है। If frequencies are not given, direct this data is given, तो sum of all observations mean is equal to mean x bar is equal to sum of all observations x1 x2 x3 plus and so on up to xn। तो how many observations are there? n observations। इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कर लेंगे, एंड डिवाइडेड बाई n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ all observations divided by number of observations. This is called mean. x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus and so on up to xn divided by xn and divided by n, sorry. This is called mean. ये तब है जब फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। जैसे x1 f1 x2 f2 x3 f3 xn fn, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? xi fi, ये बन जाएगा। ओके, इन दिस वे यू कैन फाइंड द मीन। नाउ लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल ऑफ ग्रुप्ड डाटा। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Find the mean number of plants. Mean number of plants. तो मीन किसका निकालना है? नंबर ऑफ प्लांट्स का पर हाउस। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जैसे ये दे रखे हैं 0 to 2। Here is given number of plants 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, and this 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये ग्रुप बना दिए हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, and these are called classes also, class interval। इसको आप क्लास इंटरवल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, CI क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इट इज, दिस इज सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। these are classes or groups, and in these classes these are called the lower limits 0 2 like these, and these are upper limits. These are the upper limits of classes and these are the lower limits. फर्स्ट सेकंड थर्ड, सपोज फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट पूछे कोई, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास? फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास। व्हाट इज लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास? 6। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ फिफ्थ क्लास? 10। इन दिस वे, सो दीज आर द लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स, and their number of houses also given here. Number of houses 0 to 2 houses are 1 house, then 3, then 5, 7, 9,
11, 13. These are the, what are these? These are the number of houses. अब इसने क्या कहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट, मीन नंबर ऑफ प्लांट। तो नंबर ऑफ प्लांट का मीन पूछा है, तो ये जो नंबर ऑफ प्लांट है ना, यही ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, यही ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे। ये नंबर ऑफ हाउसेज है ना, ये फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे। एंड एक्स आई वी फाइंड हेयर, एक्स आई को बोलते हैं मिड पॉइंट। व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ 0 to 2? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों लिमिट को ऐड करके आधा कर दो। 0 और 2 को ऐड करोगे 2 और आधा करोगे 1। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो 6 एंड डिवाइड बाई 2 3। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो, इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा 5। व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ 6 8 क्लास 8 and 6 is 14 and divided by 2 is 7। 18 divided by 2 is 9 and this is 22 divided by 2 is 11 और ये क्या हो जाएगा 13। These are the xis midpoint, this is class interval, this is xi। now अगर ग्रुप्ड डाटा दे रखा है तो पहले उनके xi निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, xi लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। xi इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉल्ड xi ऑब्जर्वेशन मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ वी फाइंड द xi इंटू fi, वही काम है, आगे तो बिल्कुल सेम है। xi इज दिस, fi इज दिस, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1। 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 9 11 इंटू 11 121, 13 इंटू 13 169। ठीक, ओके। नाउ वी फाइंड द सम ऑफ डायमेंशन, सम ऑफ fi xi इज इक्वल टू, वी फाइंड देयर सम। अब इनका सम क्या है, इनका सम आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 162। क्या आ जाएगा ये 162 इट इज। सॉरी ये नंबर ऑफ हाउसेज जो है ना गलत लिखे गए। नंबर ऑफ हाउसेज में क्या है कि ये 1 है, इसका 2 दे रखा है, यहाँ फिर 1 है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी 5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज 3, ये है 3। ओके, sorry for this. Now we multiply this, 1 into 1 is, this is 1, 3 into 2 is 6, 5 into 1 is 5, 7 into 5 is 35, 9 into 6 and 11 into 2 13 into 3 and now we add these and we get this 162. We add this sum of fi xi. Now sum of fi also we add this, sum of fi, this is 20, 2 and 1 3, 3 and 5 8, 8 and 6 14 and 2, this is 16, what 3 1, 2 and 1 3 and 4 9 and 6 15 and 2 17 and 3 20 it is. Okay, now mean is equal to sum of fi xi and divided by sum of fi. So sum of fi xi is this and sum of fi is 20. What we get this 8.1. 8.1 it is. इसमें नया क्या है, देखो जो ये क्लासेस दे रखी है ना, इसमें से बस मिड पॉइंट निकालने हैं, उनका नाम xi है, फ्रीक्वेंसी ये है ही।
ओके, फ्रीक्वेंसी हो गई, ये प्लांट्स नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, यहाँ से ये एक्स आई निकाल ले, एफ आई एक्स आई डिवाइड, बाकी सेम है बिल्कुल। ओके।